Hi juniors and welcome back to Humanities by Saurabh. So today we are going to do once again our class 12th ISC history chapter number 10, that is protest movements. So first of all, let us begin with the introduction of this world history chapter. So you all must have been listening in the news currently about the situation which is going on in our country. So the students are doing the protest against the corrupt education system of India. Uh, that is basically against the government for resignation of our education minister Dharmendra Pradhan. And in that particular movement, how the fast of Sonam Wangchuk and support of Cockroach Janata Party CJP is acting as a catalyst for the students who are involved in this particular situation. Now, likewise, we are going to study here about the protest movements which were going in the world in the past at different timelines. We can say here, the first thing which we will discuss is the civil right movement of USA, which was against the racial discrimination, and same was the anti-apartheid movement of South Africa, which was also against the government for the racial discrimination. And the last one will be the feminist movement, which was for the equality of women's. Okay, women were demanding the suffrage rights and many more other socio-political rights in the country, again in the USA. So basically, in all the three, you will see some kind of leadership, either by some people or organization, which were provided to the people, and certain, you can say, demonstrations, processions were taken by them that led to the change in the government's policies, and certain reforms were introduced in these arenas. I hope till here you all have been understood the background of this particular chapter, protest movement. So now, first of all, let us begin with our topic number 1 of the chapter, protest movements, that is civil rights movement of USA, which was against the racial discrimination conducted by the whites towards blacks. तो यहाँ पे मैं रीडिंग कर दूंगा, उसके बाद फिर बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर देंगे. अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो रहा होगा कि अमेरिका के अंदर ब्लैक्स आए कहाँ से थे. तो देखो, ब्रिटिशर्स ने जब अमेरिका के ऊपर अपना कंट्रोल बनाया था, तो उसके पहले ही वहाँ पे नेटिव्स रहते थे, और वो नेटिव्स जो थे वो बेसिकली यू कैन से ब्लैक इन कलर थे. अब अपना कॉलोनी बनाने के बाद यहाँ पे वाइट सेटलर्स आए, यानी कि ब्रिटेन से जो लोग अमेरिका में रहने आए वो वाइट्स थे. उन्होंने इन नेटिव्स को अपना स्लेव बना लिया, ठीक है. और सिर्फ इनको ही नहीं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, यानी कि अफ्रीका से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बुलवाया, ठीक है, अमेरिका के अंदर, और उनको यहाँ का स्लेव बना के रख लिया अपना, ठीक है, इन वाइट्स ने. फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ यही कंटिन्यू होती रह गई, और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हो गया, यानी कि जब अमेरिका आज़ाद हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, फिर भी यहाँ पे जो वाइट्स थे वो ब्लैक्स को डोमिनेट करते रहे, और ब्लैक्स के साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा, वो स्लेव इनके बने रहे. उसी के चलते यहाँ पे अब हम लोग बैकग्राउंड देखने वाले हैं कि अमेरिकन सिविल वॉर होता है 1861-65 में. तो अमेरिकन सिविल वॉर होता है 1861-65 के दौरान, और ये एक स्ट्रगल था बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पॉपुलेशन विच हैड सम पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी कि इसके वजह से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. सबसे पहले यहाँ पे जो स्लेवरी थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि अब कोई भी ब्लैक जो है वो वाइट का स्लेव नहीं रहेगा. उसके बाद यहाँ पे जो सिटीजनशिप राइट्स थी वो कुछ हद तक ब्लैक्स को दे दी गई थी, एंड फ्रेंचाइज वर गिवन टू ब्लैक्स. कहने की बात थी, फ्रेंचाइज मतलब समझते हो ना, राइट टू वोट. तो राइट टू वोट कहने की बात थी कि हाँ ब्लैक्स को दे दी गई, लेकिन एक्चुअली में कुछ भी नहीं दिया गया था. अभी भी यहाँ पे जो अमेरिका के सदर्न स्टेट्स थे
वहां पे ये सारे प्रैक्टिसेस चल रहे थे इंक्लूडिंग स्लेवरी। ठीक है, देखो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पे नॉर्थ और साउथ स्टेट्स में बटा हुआ है। देखो मैं कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्टिनेंट मतलब तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हो गया। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कंट्री जो अमेरिका है उसमें जो नॉर्थ और साउथ स्टेट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो नॉर्थ स्टेट्स थे वो ना थोड़े एजुकेटेड थे, ठीक है, उनको यहाँ पे रिफॉर्म लाना पसंद था। लेकिन साउथ वाले स्टेट्स यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स नेचर के थे, वो किसी भी तरीके का रिफॉर्म चाहते ही नहीं थे ब्लैक्स को लेके, और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि वुमेन्स को लेके, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है, फंडामेंटलिस्ट थे। उनको किसी भी तरीके का यहाँ पे चेंज नहीं चाहिए था इन द सिस्टम। वो अपना स्लेवरी कंटिन्यू करना चाहते थे, ब्लैक्स के साथ वुमेन्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था वो बस कंटिन्यू हो, ऐसा सदर्न स्टेट्स में जो वहाँ की सरकार थी, जो वहाँ के लोग थे वो चाहते थे। क्लियर है? तो बार बार जब मैं सदर्न स्टेट्स नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलूंगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो मैं नॉर्थ और साउथ कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो अलग ही अमेरिका हो गया। चलो अब इसके बाद क्या होता है, वही मैंने बताया कि जो सदर्न स्टेट्स थे यूएसए के, वो डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट्स पास कर देते हैं ब्लैक्स के अगेंस्ट, ये मतलब अमेरिकन सिविल वॉर के बाद भी। और इन एक्ट को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, जिम क्रो लॉज। जिम क्रो लॉज, अब ये जिम क्रो लॉज क्या थे, इनके थ्रू सबसे पहले तो सेपरेट एजुकेशन सिस्टम कर दिया गया, यानी कि अलग स्कूल अलग कॉलेज होंगे ब्लैक चिल्ड्रंस के लिए। देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो थी वो ब्लैक्स के लिए अलग कर दी गई, यानी कि बसेस, रेलवेज, इन सारी चीज़ों में जो ब्लैक्स हैं वो वाइट्स के साथ नहीं बैठेंगे। देखो ये कोई भी कम्युनिटी को हर्ट करना नहीं है, ठीक है, मैं बार बार ब्लैक वाइट ये सब बोल रहा हूँ, बट जो आपके बुक्स में दिया है या फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए है तो कोई भी बुरा मत मान लेना प्लीज़। चलो फिर उसके बाद दूसरी चीज़, यहाँ पे लो सैलरीज ब्लैक्स को पे की जाएंगी, और साथ ही साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। ऑफ कोर्स जब आप उनको कम पैसों में भी ज़्यादा काम कराओगे तो वो एक टाइप से एक्सप्लॉयटेशन ही होगा ब्लैक्स का। उसके बाद जिम क्रो लॉज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दी जाएगी ब्लैक्स को, यानी कि नो फ्रेंचाइज फॉर देम। एंड यहाँ पे वायलेंस जो वाइट्स कंडक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट ब्लैक्स एंड दैट वाज अलाउड, यानी कि आप वाइट्स को ये मतलब अलाउ कर रहे हो कि ब्लैक्स के साथ वो वायलेंस करें, उनको मारे पीटे। दैट वाज वेरी मच डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, ये हाई लेवल था बिल्कुल। और इन जिनको लॉज को जो सदर्न स्टेट्स ने पास किया था और ये सारे प्रोविजंस लाए थे, उनको उस टाइम के प्रेसिडेंट जो वुड्रो विल्सन थे 1912 में, याद है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है चलता है, जो हो रहा है ब्लैक्स के साथ अच्छा ही है। सोचो, तो फिर इन्हीं सारी चीज वजह से ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूएसए में चल रहा था, हमारा सिविल राइट मूवमेंट आ जाता है, ठीक है, सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट होता है इन 1909 या 10 यू कैन से, नेशनल एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, NAACP, नेशनल एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, NAACP, याद रखना इसको, फाउंड किया जाता है, जो कि एक ब्लैक कम्युनिटी का एसोसिएशन था, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये किस लिए बनाया गया था, ताकि वो लोग यहाँ पे इक्वालिटी को अचीव कर सके कंट्री के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ही एज अ लीडरशिप निभाते हैं इस सिविल राइट्स मूवमेंट में, और यही आवाज उठाते हैं अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो मार्टिन लूथर किंग जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म, यानी कि रेसिज्म के खिलाफ यहाँ पे स्टार्ट होता है एक मूवमेंट। सबसे पहले एक इवेंट होता है 1955 में। 1955 में अमेरिका में होता क्या है कि एक रोजा पार्क्स नाम की ब्लैक वुमेन होती है, ठीक है, ब्लैक वुमेन होती है, वो एक रिजर्व्ड सीट पे बैठ जाती है। किसके रिजर्व सीट्स पे बैठ जाती है, जो सीट यहाँ पे वाइट्स के लिए रिजर्व था उसके ऊपर बैठ गई थी। और किस बस में, तो मोंटगोमेरी बस था उसी में। तो इसके चलते इतनी छोटी सी चीज को लेके उनको वहां की सरकार ने अरेस्ट कर लिया कि रोजा पार्क्स कैसे किसी वाइट के लिए जो सीट रिजर्व है उसके ऊपर बैठ गई, और उसके चलते उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब इसको लेके यहाँ पे बॉयकॉट स्टार्ट हो जाता है मोंटगोमेरी बसेस का 1956 में, और ये कौन कंडक्ट कराता है, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, और ऑफ कोर्स ब्लैक्स इनका साथ दे रहे थे।
फिर उसके बाद एक और इवेंट होता है 1963 में। 1963 में सडनली जो ब्लैक पॉपुलेशन था वो यहाँ पे ह्यूज मार्च या डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट करता है वॉशिंगटन डीसी में, यानी कि यूएसए के कैपिटल में। किस लिए? क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे थे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे थे। जहां पे मार्टिन लूथर तो प्रेजेंट थे ही, उनके साथ और भी लीडर्स थे, और इन सबको कलेक्टिवली क्या नाम दिया गया था? बिग सिक्स। आपके बुक में दिया गया है, रीड करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूं एक बार यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल फिलिप रैंडोल्फ, देन रॉय विकलिंस, देन विटनी यंग, जेम्स फार्मर एंड जॉन लीविस। ठीक है, और मान लो मार्टिन लूथर किंग तो थे। तो फिलिप रेडोल्फ, रॉय विकलेंस, विटनी यंग, जेम्स फार्मर एंड जॉन लीविस का नाम याद रख सकते हो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, फिर उसके बाद उसी बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वॉशिंगटन के दौरान 1963 में मार्टिन लूथर ने एक स्पीच दिया था, और वो इतना फेमस स्पीच था उनका क्योंकि उसमें उन्होंने एक लाइन बोली थी, आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, और ये जो आई हैव अ ड्रीम है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए भी अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि वुमेन्स भी इस आई हैव अ ड्रीम वाले लाइन से इंस्पायर्ड हो गई थी। ठीक है, कि हमें भी इक्वालिटी चाहिए समाज में। फिर उसके बाद आखिरकार कैसे गवर्नमेंट के एटीट्यूड में चेंज आता है, क्योंकि हमने तो देखा था वुड्रो विल्सन इस सबको एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में जो सरकारें आती हैं यूएसए के अंदर वो इस चीज़ को रिजेक्ट करती हैं, इसके खिलाफ कदम उठाती हैं। ठीक है, कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती हैं। अब इसके पीछे क्या क्या रीजन था? सबसे पहले इनइक्वालिटी वाज अनएथिकल। अब देखो, इनइक्वालिटी तो एथिकल चीज होती नहीं है, तो सबसे पहला रीजन क्या दिया गया कि इनइक्वालिटी अनएथिकल है। ठीक है, ऐसा रियलाइज हुआ सरकार को। देन सेकेंड पॉइंट, many talents were wasted because blacks were not given high post। यानी कि सोचो कि blacks को आप हाई पोस्ट इसलिए नहीं दे रहे हो बिकॉज वो आपकी तरह वाइट कलर के नहीं है, सिर्फ मतलब रेशियल बेसिस पे। तो इस वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे टैलेंट्स का वेस्टेज हो रहा है। सोचो आपके कंट्री का कितना अपलिफ्टमेंट हो जाता अगर कोई इंटेलिजेंट ब्लैक व्यक्ति हाई पोस्ट पे आ जाता। तो ये एक सेकंड रीजन था। देन थर्ड रीजन क्या था गवर्नमेंट के एटीट्यूड के चेंज आने में, विच वॉज अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज विच वर न्यूली इंडिपेंडेंट कैन गो अगेंस्ट यूएसए इन द कोल्ड वॉर। अब आप लोगों को कोल्ड वॉर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। कोल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर दो ब्लॉक्स का क्रिएशन हो गया था। अब सरकार ने ये सोचा कि अगर ये ब्लैक्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हमने कंटिन्यू किया, तो जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं एशिया की या अफ्रीका की, वहाँ पे भी तो जनरली ब्लैक पॉपुलेशन ही रहती है, तो वो लोग क्या करेंगे, यूएसएसआर के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, हमको सपोर्ट नहीं करेंगे कोल्ड वॉर में, तो उसके लिए भी अपने पॉलिसीज को चेंज करना था। एंड लास्ट रीजन वाज यूएस बीइंग अ डेमोक्रेसी शुड नॉट प्रमोट रेसिज्म। और यूएस से जो कि अपने आप को इतना बड़ा डेमोक्रेसी कहता है, डेमोक्रेटिक ब्लॉक का वही लीडर था, वही अगर रेसिज्म जैसी चीज करेगा तो वो तो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाएगी। ऑफ कोर्स वर्ल्ड में उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो बस यही पांचों रीजन आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया, इनइक्वालिटी अनएथिकल है, देन बहुत सारे टैलेंट्स वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि ब्लैक्स जो है वो हाई पोस्ट पे जाके कुछ कंट्री के लिए कर सकते हैं। देन अमेरिका जो है वो डर रहा था कि जो अफ्रीका और एशिया की न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वो कहीं यूएसएसआर के साथ कोल्ड वॉर में ज्वाइन ना कर जाए इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को देख के ब्लैक्स के साथ। एंड फाइनली यहाँ पे जो यूएसए है वो एक डेमोक्रेसी है, तो वो रेसिज्म को प्रमोट नहीं कर सकता है। अब इसी के चलते यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले एक और इवेंट आता है। अब वो इवेंट को क्या कहा जाता है, ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये 1951 में केस शुरू हुआ था। ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1951 में केस शुरू हुआ था। इसमें जनरली होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक लोकल रेसिडेंट थे, ठीक है, एक लोकल रेसिडेंट थे ओलिवर ब्राउन करके। ठीक है, ओलिवर ब्राउन करके एक लोकल रेसिडेंट थे। उनकी डॉटर को एडमिशन नहीं दिया गया था एक पब्लिक स्कूल में जो कि टॉपिका कैंसस में था। ठीक है, टॉपिका कैंसस में एक पब्लिक स्कूल था, उसमें ओलिवर ब्राउन वहाँ के लोकल रेसिडेंट थे, उनकी डॉटर को एडमिशन नहीं दिया गया था। ऑफ कोर्स उनको क्या कहा जाता है कि आप अपनी लड़की को जो सेग्रीगेटेड स्कूल्स बना है ब्लैक के लिए उसमें डालिए। ठीक है, जो कि उनके घर से बहुत दूर था। सोचो अपने घर के पास वाले स्कूल में ही ना कोई एडमिशन कराएगा ताकि जाने में आसानी होगी, लेकिन उस स्कूल में तो इनको लेने से ही मना कर दिया ये टॉपिका कैंसस के स्कूल वालों ने।
तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, पेटिशन फाइल करते हैं, ठीक है, पेटिशन फाइल करते हैं कोर्ट में, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक वो जाते हैं, और फिर यहाँ पे 1954 में रूलिंग आती है कि जो सेग्रीगेशन है स्कूल के अंदर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज एजुकेशन के मामले में आप ये नहीं कह सकते हो कि हम इस पर्टिकुलर व्यक्ति का सिर्फ और सिर्फ रेस के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली केस आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या मैंने बताया था, ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1951 में शुरू हुआ और 1954 में सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था कि जो सेग्रीगेशन है स्कूल्स के अंदर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो सेपरेट स्कूल्स वर बैंड। देन इन 1957 ट्रूमन, यानी कि जो प्रेसिडेंट ट्रूमन थे, वो सेटअप करते हैं एक कमेटी, तो इसी वजह से उस कमेटी का नाम पड़ जाता है ट्रूमन कमेटी। अब ट्रूमन कमेटी को इन्वेस्टिगेट करना था जनरली इन राइट्स को, कि ब्लैक्स को कौन से राइट देने चाहिए, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेट वोटिंग राइट्स, बट ये एक फेलियर साबित हुआ था, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे भी सदर्न स्टेट्स ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया था और उन्होंने मना कर दिया था कोई भी रिफॉर्म लाने से। फिर उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट एइजनहावर, ठीक है, प्रेसिडेंट एइजनहावर, और वो बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेते हैं इन चीज़ों के लिए, और वो यहाँ पे क्या करते हैं, फेडरल ट्रूप्स को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सोल्जर्स होते हैं उनको ये स्टेट्स में भेजते हैं, ठीक है ना। किस लिए भेजते हैं, ताकि जो ब्लैक चिल्ड्रंस हैं उनको पब्लिक स्कूल्स में एडमिट किया जा सके, कोई सेग्रीगेशन ना हो, वाइट्स के साथ वो भी पढ़ सकें इक्वली, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्रेसिडेंट कैनेडी आते हैं, और प्रेसिडेंट कैनेडी यहाँ पे अपॉइंट करते हैं फर्स्ट ब्लैक एम्बेसडर, यानी कि पहले ब्लैक एम्बेसडर को यूएसए में अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट कैनेडी, जो कि बहुत बड़ा पोस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद ये सिविल राइट्स बिल भी लाते हैं कांग्रेस में, सिविल राइट बिल भी लाते हैं कांग्रेस में, जो कि अल्टीमेटली 1964 में पास होता है, 1964 में पास होता है, और इसी के थ्रू यहाँ पे जो भी रेसिज्म था उसको खत्म किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक दो और चीज़ें थी जो प्रेसिडेंट जॉनसन ने की थी, बिकॉज मैंने आपको बताया कि उन्होंने बहुत स्टेप्स लिए थे इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। सबसे पहले तो उन्होंने वोटिंग राइट एक्ट लाया था 1965 में। वोटिंग राइट एक्ट 1965 का क्या कहता था कि जो ब्लैक्स हैं उनके पास अथॉरिटी होगी टू राइट टू वोट, यानी कि उनको पॉलिटिकल राइट्स, फ्रेंचाइज, सफरेज दे दिया गया था। उसके बाद सिविल राइट एक्ट 1968 में लाया गया था। सिविल राइट एक्ट अगेन प्रेसिडेंट जॉनसन के द्वारा 1968 में लाया गया था, और ये किस लिए था कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके वो इनलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। बेसिकली होता क्या था कि जो ब्लैक्स हैं उनको कहा जाता था कि वो प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकते, ठीक है, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो उसी चीज़ को ये सिविल राइट एक्ट ऑफ 1968 ने ख़त्म किया और इनलीगल डिक्लेयर कर दिया टू डिस्क्रिमिनेट इन सेलिंग प्रॉपर्टी टू ब्लैक्स। फिर उसके बाद यहाँ पे होता क्या है, 1975 तक कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ब्लैक मेंबर्स इलेक्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये सिविल राइट मूवमेंट का इम्पैक्ट, डिस्क्रिमिनेशन यूएसए से खत्म होने लगा। लेकिन बाद में चल के यहाँ पे वाइट का हॉस्टिलिटी भी देखने को मिलता है, यानी कि ऑफ कोर्स ये लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं इन रिफॉर्म्स के अगेंस्ट, और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब जल्दी से जो भी हमने पढ़ा उसका एक बार रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, प्रोटेस्ट मूवमेंट में हमने स्टार्ट किया है सिविल राइट मूवमेंट को, और ये अगर हम लोग बात करें तो पर्टिकुलरली यूएसए का था, ठीक है, जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसके अगेंस्ट। सबसे पहले अगर हम लोग बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पे जिम क्रो लॉज आते हैं, ठीक है, यूएसए के अंडर, जिसके थ्रू यहाँ पे सेपरेट स्कूल्स और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ला दिया जाता है ब्लैक्स के लिए। फिर उसके बाद जो सैलरीज हैं वो कम दी जाती हैं तो इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। देन कोई वोटिंग राइट्स इनको नहीं दी जाती है, ठीक है, यानी कि सफरेज, फ्रेंचाइज वर नॉट अलाउड फॉर द ब्लैक्स, एंड यहाँ पे वॉयलेंस जो है वो अलाउ कर दिया जाता है टू कंडक्ट बाय द वाइट्स ऑन ब्लैक्स। उसके बाद इसी के चलते यहाँ पे हमने देखने को मिलता है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन दिस सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ यूएसए। ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं रेसिज्म के खिलाफ, ठीक है, रेसिज्म के खिलाफ ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं, बेसिकली पीसफुल मेथड के थ्रू, जैसे हमारे इंडिया में गांधी जी थे, यू कैन से। और ये भी याद रखना नेट इनको 1967 में नोबेल पीस
प्राइज दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। और अगले ही साल 68 में 1968 में इनको असैसिनेट कर दिया गया था। ठीक है, असैसिनेट कर दिया गया था आई थिंक जेम्स याल रे के द्वारा मिमीस टेनेस्नी में। ठीक है, आपके बुक्स में दिया है वो। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इनके मेजर कंट्रीब्यूशंस की या इनके दौरान जो इवेंट्स हुए उसकी, तो सबसे पहले 1955 का जो रोज़ा पार्क का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये एक रोज़ा पार्क्स एक ब्लैक लेडी थी, इनको एक वाइट के सीट पे बैठने के लिए अरेस्ट कर लिया गया था वहाँ के पुलिस के द्वारा। ठीक है, मॉन्टेगोमेरी बसेस का इसी वजह से हमें बॉयकॉट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ 1963 में क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी ब्लैक्स की, इस वजह से ह्यूज डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं। ठीक है, एक मार्च निकाला जाता है, रैली होती है, ठीक है, वॉशिंगटन में, जहाँ पे बिग सिक्स प्रेजेंट थे, ठीक है, इंक्लूडिंग मार्टिन लूथर। और वहीं पे वो अपना एक फेमस स्पीच देते हैं, उसका लाइन होता है आई हैव अ ड्रीम। देन यहाँ पे कैसे चेंज ऑफ गवर्नमेंट एटीट्यूड आता है उसके पीछे मैंने आपको रीजंस बता दिए हैं। और यहाँ पे होता क्या है, 1957 में ट्रूमन कमेटी आता है। फिर उसके बाद 1954 में जो सेपरेट स्कूल्स थे उनको इनलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था बाय अ केस। देन जो प्रेसिडेंट जॉनसन थे उनके कई सारे एफर्ट्स की वजह से सिविल राइट एक्ट 1964 का, वोटिंग राइट एक्ट, देन सिविल राइट एक्ट ऑफ 1968 का आता है। देन प्रेसिडेंट कैनेडी के अंदर जो फर्स्ट ब्लैक एम्बेसडर है वो भी अपॉइंट किया गया था यूएसए में। तो ये पूरा टॉपिक आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं टू आवर टॉपिक नंबर 2, दैट इज एंटी अपार्थाइड मूवमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका अगर आप लोग अपने वर्ल्ड मैप में देखोगे तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे नीचे आता है, इसी वजह से उसको साउथ अफ्रीका कहा जाता है। अब होता क्या है यहाँ पे, 1652 में, कितने साल पहले की बात हो रही है, 1652 में, यानी कि 17th सेंचुरी के दौरान डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है साउथ अफ्रीका में, और उनको कहा जाता है अफ्रीकनर्स या बोर्स। ठीक है, अफ्रीकनर्स या बोर्स, ठीक है, याद रखना। और इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब था फार्मर्स, as they forcibly took lands of the native black settlers and made them slaves। यहाँ पे भी वही चीजें की जाती हैं अमेरिका की ही तरह। होता क्या है, 1652 में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी साउथ अफ्रीका में आती है और उनको अफ्रीकनर्स या बोर्स कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इस वर्ड का मतलब होता है फार्मर्स। और ये लोग क्या करते थे डच वाले कि साउथ अफ्रीका में जो नेटिव्स रह रहे थे, ठीक है, नेटिव ब्लैक सेटलर्स, उनसे जमीनें ले जाती हैं, ठीक है, लैंड्स उनसे जबरदस्ती ले लिया जाता है, फोर्सफुली, और उनको वहां पे स्लेव्स बना लिया जाता है। यानी फिर ये जो वाइट्स हैं ब्लैक्स को अपने स्लेव बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर एंड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है, ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स था वो फ्रेंच के साथ उलझा हुआ था, तो जो अब फ्रेंच था वो फ्री हो गया, तो कॉन्कर करने आ जाता है केप ऑफ गुड होप को। व्हाट इज दिस केप ऑफ गुड होप? साउथ अफ्रीका का ही नाम उस टाइम पे था केप ऑफ गुड होप। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है। केप ऑफ गुड होप कुछ और नहीं है, साउथ अफ्रीका ही है, बस उसका नाम उस टाइम पे अलग था। केप ऑफ गुड होप को कैप्चर करने कौन आ जाता है? ब्रिटिश आ जाता है आफ्टर द एंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1795। ठीक है, 1795। देन इन 1814, ये सारे डेट्स याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है, डेट ना भी याद हो तो ये बस कहानी याद रख लेना कि कौन पहले आया। अब 1814 में क्या होता है, दैट थ्रू अ पीस सेटलमेंट के थ्रू यहाँ पे डच और ब्रिटिश के बीच में जो हुआ, ब्रिटिशर्स को यहाँ पे साउथवर्ड हिस्सा मिल जाता है केप ऑफ गुड होप को, और जो डच हैं वो नॉर्थवर्ड चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर यहीं तक नहीं रुकते हैं ये लोग, बोर वॉर होता है, बोर वॉर, ठीक है, बोर वॉर होता है ड्यूरिंग 1899 टू 1902। 1899 से लेकर 1902 तक बोर वॉर होता है, और इसमें ब्रिटिशर्स पूरा का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं केप ऑफ गुड होप का, डच को यहां से हटा देते हैं, और नाम क्या हो जाता है इसका? यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिटिशर्स को क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, यूएसए। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करना उस वाले यूएसए के साथ।
तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी ना कि कैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आते हैं, फिर उसके बाद पीस सेटलमेंट के थ्रू डच को नॉर्थवर्ड्स भेज देते हैं, लेकिन बाद में चल के बोर वॉर्स में जीत के और डच को वहां से पूरे तरीके से हटा के पूरे केप ऑफ गुड होप का कंट्रोल ले लेते हैं और ब्रिटिशर्स इसका नाम बदल के यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका रख देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे शुरू होता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक्स। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक्स, देखो उनको कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं दी जा रही थी, ठीक है। ऑफ कोर्स ब्रिटिश हो या डच हो, हैं तो यूरोप के ही ना, यानी वाइट्स हैं, तो ब्लैक्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ही। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहे थे उनको, उनको स्लेव बना रहे थे, उनको बैरिक्स में रहने के लिए फोर्स कर रहे थे। नाउ व्हाट आर बैरिक्स? BARRACKS, बैरिक्स। बैरिक्स का मतलब होता है कि एक रिजर्व्ड एरिया, ठीक है, रिजर्व्ड एरिया जो कि यूरोपियन सेटलमेंट से बहुत दूर हुआ करता था साउथ अफ्रीका में, जो कि कंट्री का सिर्फ 7% कॉन्स्टिट्यूट करता था। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ब्लैक्स के साथ कौन कौन से डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटिशर्स कर रहे थे। सबसे पहले उनको कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दिया जा रहा था, यानी कि उनको वोटिंग करने का कोई अधिकार नहीं था, उनको स्लेव बनाया जा रहा था, ठीक है, अपना नौकर बनाया जा रहा था। तीसरा, यहाँ पे उनको फोर्स किया जा रहा था बैरिक्स में रहने के लिए, यानी कि वो आइसोलेटेड रहें। बैरिक्स का मतलब है एक रिजर्व्ड एरिया, पर्टिकुलर एरिया जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक्स के लिए डेजिग्नेटेड था, और उन पर्टिकुलर एरियाज को बहुत दूर रखा जाता था यूरोपियन सेटलमेंट से साउथ अफ्रीका में। और ये जो बैरिक्स थे सिर्फ 7% कंट्री का कॉन्स्टिट्यूट करते थे, यानी कि कैसे इन बेचारे ब्लैक्स को स्लम्स में रहना पड़ता था, ठीक है, क्लस्टर्ड एरियाज में रहना पड़ता था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया गया वहाँ के गोल्ड माइंस को, ठीक है, गोल्ड माइंस को एक्सप्लॉइट किया गया वाइट्स के द्वारा, लेकिन क्योंकि गोल्ड माइंस में ब्लैक्स काम करते थे तो उनके हेल्थ कंडीशंस बहुत ख़राब हो रहे थे, और उनके हेल्थ कंडीशन से वाइट्स को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था, यानी ब्रिटिशर्स को। फिर उसके बाद यहाँ पे सरकार सिस्टम ऑफ पास लॉज पास कर देती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास लॉज, ठीक है, यहाँ मैंने लिख रखा है पास लॉज। अब ये क्या थे सिस्टम ऑफ पास लॉज जो सरकार लाती है? इसके थ्रू यहाँ पे कहा जाता है कि जो मूवमेंट है ब्लैक्स का वो रोक देना है, यानी कि जो ब्लैक्स हैं वो अपने रिजर्व्ड एरियाज में ही रहें, किसी भी तरीके से वो वाइट्स के एरिया में आने की कोशिश भी ना करें। इसके कंडीशंस ये रखे गए कि ब्लैक्स को ना एक तरीके का पास लेके घूमना होगा, और वो पास ये दिखाएगा कि अगर आप किसी वाइट के एरिया में रहना चाहते हो तो उसका स्लेव बन के ही आपको रहना होगा, आप वहां पे ऐसे ही इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हो, नहीं तो फिर आप रहो अपने रिजर्व्ड एरिया में। क्लियर है? फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बनते हैं डॉक्टर DE मलान, डॉक्टर DE मलान, तो ये मलान क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक नया सिस्टम, ठीक है, एक नया टर्म अपार्टीड, ठीक है, अपार्टीड। और इस अपार्टीड वर्ड का मतलब क्या होता है? अपार्टनेस या सेग्रीगेशन, ठीक है, अपार्टनेस या सेग्रीगेशन, यानी कि आप सेपरेट कर दे रहे हो पूरे तरीके से ब्लैक पॉपुलेशन को फ्रॉम दी वाइट्स। अब अपार्टीड इंट्रोड्यूस करके क्या क्या लाया गया था? सबसे पहले सेपरेट बसेस, ठीक है, यानी कि अलग अलग बस होगी वाइट और ब्लैक के लिए, टॉयलेट अलग होगा, पार्क के बेंचेस तक अलग अलग होंगे, यानी कि एक बेंच के ऊपर ब्लैक और वाइट एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। देन हॉस्पिटल्स अलग होंगे, स्कूल्स अलग होंगे, और भी एक्सेट्रा जितनी चीजें ये लोग कर सकते थे अलग ब्लैक और वाइट के लिए, वो यहाँ पे किया गया। किस लिए? बिकॉज मलान का मानना था कि जो रेशियल प्यूरिटी है वाइट्स का वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। सोचो कितने हाई लेवल की चीजें की जानी थी उस टाइम पे। और साथ ही साथ अपार्टीड के थ्रू यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए। व्हाट वर दिस आइडेंटिटी कार्ड्स? आइडेंटिटी कार्ड्स अफ्रीकन्स के लिए यानी कि ब्लैक्स के लिए मस्ट था, ठीक है, मस्ट था, क्योंकि इसके बिना वो कहीं भी ट्रेवल नहीं कर सकते थे, ठीक है। एंड दे वर डिनाइड प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि वो प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते थे। देन एजुकेशन एज वेल एज नो मैरिज, यानी कि ऑफ कोर्स सेपरेट एजुकेशन था, और उनको बहुत इंफीरियर लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था उन सेपरेट स्कूल्स या कॉलेजेस में भी, ठीक है। सिर्फ आगे चल के उनको स्लेव ही बनाना, इस वजह से उनको ज़्यादा एजुकेट भी नहीं किया जा रहा था। कोई भी मैरिज अलाउ नहीं था बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक फॉर द प्योरिटी ऑफ वाइट रेस, ताकि यहाँ पे सेक्सुअल प्योरिटी मेंटेन रहे,
क्योंकि अगर एक ब्लैक और वाइट के बीच में शादी होती तो अल्टीमेटली उनसे बच्चा होता, तो वो यहाँ पे रेशियल प्योरिटी नहीं होता मलान के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से यहाँ पे मैरिज को भी इनलीगल डिक्लेयर कर दिया गया बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। तो लव मैरिज तो किसी भी कीमत पे उस टाइम पे प्रेवलेंट ही नहीं था। देन मलान के पार्टी का नाम क्या था? अफ्रीकनर नेशनलिस्ट पार्टी। अफ्रीकनर नेशनलिस्ट पार्टी, और अफ्रीकनर नेशनलिस्ट पार्टी का ना एजेंडा ही था कंट्री में आने का कि अपने मास्टर रेस थ्योरी को मेंटेन करना है, ठीक है, यानी कि कंप्लीट अथॉरिटी हो सिर्फ और सिर्फ वाइट्स की, एंड यहाँ पे ब्लैक्स जो हैं वो इंफीरियर रहे। कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं अलाउ किया जा रहा था ब्लैक्स के द्वारा, ठीक है, यानी कि सब सप्रेस कर दिया जा रहा था। ब्लैक मिनेस अलाउड नहीं था। ब्लैक मिनेस, मिनेस का मतलब होता है ब्लैक रूल अलाउड नहीं था। एंड देयर राइट टू स्ट्राइक वॉज एबॉलिश्ड, यानी कि ब्लैक्स जो हैं वो स्ट्राइक्स भी नहीं कर सकते हैं पीसफुली, वो भी एबॉलिश कर दिया गया उनका राइट। अब जब इतनी सारी चीजें आप करोगे तो ऑफ कोर्स उसका रिएक्शन तो आएगा। तो स्टार्ट होता है एंटी अपार्टेड मूवमेंट, यानी कि अपार्टेड पॉलिसी के खिलाफ ब्लैक्स का मूवमेंट शुरू होता है साउथ अफ्रीका में। फर्स्ट प्रोटेस्ट was led by the African National Congress under the leadership of Albert Luthuli in 1952। यानी एक पार्टी होती है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, इसके उस टाइम पे लीडर होते हैं एल्बर्ट ल्यूटली, और एल्बर्ट ल्यूटली ही 1952 में स्टार्ट करते हैं इस मूवमेंट को, और बहुत पीसफुली अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ, लेकिन तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों? बिकॉज स्ट्राइक्स इनलीगल थी, तो सरकार इन सबको अरेस्ट कर लेती हैं। फिर उसके बाद ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो यहाँ पे ल्यूथली के अंडर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जेल से बाहर आने के बाद फिर से शुरू कर देता है, ठीक है। और ल्यूथली का भी एक फेमस लाइन आता है, याद रखना, MCQ में पूछ सकता है, लेट माई पीपल गो, ठीक है। वो क्या बोलते हैं? लेट माई पीपल गो, ठीक है। लेट माई पीपल गो कौन बोलते हैं? एल्बर्ट ल्यूथली बोलते हैं, ठीक है। एल्बर्ट ल्यूथली बोलते हैं लेट माई पीपल गो, यानी मेरे लोगों को जाने दो सरकार से। इन हीज ऑटोबायोग्राफी, यानी कि ल्यूथली के ऑटोबायोग्राफी में इस चीज को मेंशन किया गया है। और उसके बाद इसी के चलते, क्योंकि उन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया था, उनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। लेकिन यहाँ पे 1967 में कहा जाता है सरकार के द्वारा कि वो मारे जाते हैं जब वो एक ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक टाइप से ना झूठ बोला जाता है, क्योंकि उनको मरवाया गया था। सो ही वॉज असैसिनेटेड, ठीक है, ताकि जो अल्टीमेटली ये ब्लैक्स के लिए वो चीज़ें कर रहे थे वो रुक जाए। उसके बाद लीडरशिप किसके हाथ में आ जाती है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की, नेल्सन मंडेला के पास, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को और भी कुछ चीज़ें याद रखनी है। 1955 में ANC ने फॉर्म किया था कोएलिशन विद एशियन एंड कलर्ड ग्रुप्स, यानी कि जो एशियन और कलर्ड ग्रुप्स थे, दूसरे एसोसिएशंस थे, उनके साथ एक कोएलिशन बना के इन सभी लीडर्स ने अनाउंस किया था फ्रीडम चार्टर। फ्रीडम चार्टर, और इस फ्रीडम चार्टर के क्या क्या डिमांड्स किए गए थे, ठीक है। सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि सरकार ब्लैक्स को इक्वालिटी बिफोर लॉ दे, यानी कि लॉ के मामले में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, व्हाइट्स और ब्लैक्स का इक्वालिटी रहे। देन फ्रीडम ऑफ असेंबली, मूवमेंट, स्पीच, रिलीजन एंड प्रेस। अब इन सबको ना अपने फंडामेंटल राइट से कनेक्ट कर दो, बिकॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी यही सारी चीज़ें जनरली दी गई हैं। तो क्या कहा गया फ्रीडम चार्टर में? दूसरी चीज़ की फ्रीडम ऑफ असेंबली, मूवमेंट, स्पीच, रिलीजन एंड प्रेस दिया जाए। देन राइट टू वोट दिया जाए, राइट टू वर्क विद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया जाए, ठीक है, यानी कि ऑफकोर्स इक्वल पे हो इक्वल वर्क के लिए। देन 40 आवर वर्किंग वीक हो, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो ब्लैक्स का, मिनिमम वेजेस दिए जाएं एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएं। देन फ्री मेडिकल केयर प्रोवाइड किया जाए, एंड लास्ट में फ्री कंपलसरी एंड इक्वल एजुकेशन हो, यानी कि आप ब्लैक्स के साथ इंफीरियर एजुकेशन ना प्रोवाइड करो। अब ऑफ कोर्स ये जो चार्टर था वो मेन एम बन जाता है ANC के प्रोग्राम का। उसके बाद फिर 1957 में बस का बॉयकॉट भी ANC ऑर्गेनाइज करती है। किस लिए? बिकॉज ऑफ कोर्स रोजा पार्क की ही तरह यहाँ पे भी सेग्रीगेशन किया जा रहा था बसेस में, तो बस का बॉयकॉट होता है 1957 में। फिर अगर हम लोग देखें यहाँ पे 1960 को, तो 1960 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस साल हुआ था सर्वपल्ली मास्करे, ठीक है। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था? सर्वपल्ली मास्करे। स्पेलिंग में यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना, यहाँ लिख देता हूँ।
सर्वपल्ली मास्के, यानी कि सर्वपल्ली का हत्याकांड। जैसे जलियांवाला बाग मास्करे हुआ था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें ब्रिटिशर्स ने ओपन फायर कर दिया था जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ था साउथ अफ्रीका में। सर्वपल्ली नाम का एक जगह था और इसी जगह पे लोग जो है वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे 1960 में, ठीक है, 1960 में, और उनके ऊपर पुलिस ने गोली चला दी और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। इस वजह से सर्वपल्ली हत्याकांड कहा गया है। स्पेलिंग देख लेना, SHARPEVILLE। बोर्ड के ऊपर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इस वजह से हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है, वरना नोट्स मैंने बनाए उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देन क्रिटिसिजम्स, बेसिकली बहुत सारा क्रिटिसिज्म साउथ अफ्रीका की सरकार फेस करती है, यानी बेसिकली ब्रिटिशर्स फेस करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से, ठीक है। इसी 1960 के सर्वपल्ली मास्कर के बाद, जिसमें कि पुलिस ने ओपन फायर कर दिया था क्राउड के ऊपर, ठीक है, भीड़ के ऊपर, जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी पास क्लॉज के खिलाफ। पास क्लॉज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बहुत सारे लोग मारे गए थे और इंजर भी हुए थे। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी यानी कि OAU, क्वामे नक्रुमा को पढ़ाते टाइम मैंने बताया था ना, OAU, और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के मेंबर्स, ठीक है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के जो मेंबर्स थे एशियन अफ्रीकन कंट्रीज, उन सब ने यहाँ पे क्रिटिसाइज करने स्टार्ट कर दिया साउथ अफ्रीका की इस पॉलिसी को, ठीक है। और वो चाहते थे कि जो ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है वो खत्म हो। अब यहाँ पे वीक इकोनॉमी हो गई थी साउथ अफ्रीका की, और ब्लैक पॉपुलेशन जो थी वो दिन पे दिन इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। सो बेसिकली अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करें कि कैसे एंटी अपार्टिक मूवमेंट को सपोर्ट मिला था बाहर की कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन से, तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका को यहाँ पे जबरदस्ती कॉमनवेल्थ से बाहर कर दिया गया था 1961 में। अब आप लोग कहोगे कि कॉमनवेल्थ तो ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था, तो ब्रिटिशर्स अपने ही पर्टिकुलरली कॉलोनी को क्यों बाहर निकालेंगे? इस वजह से निकालेंगे क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था बाय द अदर मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, क्योंकि बाकी सारे मेंबर्स तो एशिया अफ्रीका से ही थे, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ से साउथ अफ्रीका को बाहर निकाल दिया जाता है 1961 में। अब ये डेट्स आपको याद करने पड़ेंगे, 1961 में। फिर उसके बाद यहाँ पे UN और OAU कंडेम करते हैं अपार्टीड को, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। 1962 में यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है वो रेजोल्यूशन पास करता है। जनरल असेंबली एक टाइप से लेजिस्लेचर है UN का, वो रेजोल्यूशन पास करता है और इम्पोज कर देता है ट्रेड बॉयकॉट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ट्रेड बॉयकॉट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, यानी कि ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये यूजलेस हो जाता है, क्यों? बिकॉज ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, वेस्ट जर्मनी एंड इटली, उस टाइम पे वेस्ट जर्मनी था यानी डिवाइडेड था कोल्ड वॉर के दौरान, तो ये लोग तो ब्रिटेन के साथ ही थे, तो ऑफ कोर्स ट्रेड करेंगे ही साउथ अफ्रीका के साथ। इसी वजह से एक टाइप से फेलियर हो गया था इस UN के मूव का। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1963 में फिर से यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो कॉल करता है फॉर अ पार्शियल आर्म बैन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका जो है वो आर्म्स नहीं रख सकती है, पार्शियली, मतलब पार्शियल बैन लगा दिया गया उसके ऊपर। देन उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने डिसाइड किया कि जो साउथ अफ्रीका है उसको 1964 के टोक्यो ओलंपिक से बाहर निकाल दिया जाए, यानी कि साउथ अफ्रीका को अब स्पोर्ट्स तक में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भी अलाउड नहीं था एंटर करना थ्रू इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। 1964 में उसको टोक्यो ओलंपिक से बाहर निकाल दिया गया और यहाँ पे एकेडमिक बॉयकॉट भी स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था कई सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स के द्वारा कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है अपार्टीड के अगेंस्ट वो बिल्कुल सही है, ठीक है, उसको हम सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कैसे अब सिचुएशंस में चेंज आता है कि ब्लैक मेजॉरिटी रूल का एस्टेब्लिशमेंट आखिर साउथ अफ्रीका में कैसे होता है और ब्रिटिशर्स यहाँ से छोड़ के कैसे जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वाइट डोमिनेंस खत्म होता है। सो बेसिकली 1979 में, ठीक है, 1979 में नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं साउथ अफ्रीका के, जिनका नाम होता है PW बोछा,
ठीक है, PW बोथा। प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, बट क्या करें, ऐसा ऐसा नाम ही है। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, हाँ ये रहा, ठीक है। अब ये डिक्लेयर कर देते हैं एंड ऑफ वाइट डोमिनेंस, ठीक है। PW बोथा जो है वो बहुत सारे मेजर्स लेते हैं ब्लैक्स के साथ इक्वालिटी करने के लिए। ब्लैक्स वर गिवन राइट टू जॉइन ट्रेड यूनियन, ठीक है, यानी कि वो ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कोर्स अब ब्लैक्स को स्ट्राइक करने का राइट दे दिया गया था। फिर 1981 में, ऑफ कोर्स ये सारे PW बोथा के ही मेजर्स की मैं बात कर रहा हूँ। 1981 में वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल राइट्स भी कुछ हद तक दे देते हैं, ठीक है। 1984 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जाता है साउथ अफ्रीका में, जिसमें कि 2 हाउसेस बनते हैं, ठीक है, 2 हाउसेस बनते हैं पार्लियामेंट में। एक था फॉर द एशियन और दूसरा था फॉर द कलर्ड ग्रुप्स, ठीक है, एक था फॉर द एशियंस एंड दूसरा फॉर द कलर्ड ग्रुप। और पॉलिटिकल राइट देने का मतलब ये है ना कि उनको लोकल लेवल पे राइट टू वोट दे दिया गया था। जैसे हमारे यहाँ होता है ना पंचायती राज, वैसे ही वहाँ पे भी कुछ लोकल लेवल का गवर्नमेंट होगा, वहाँ पे वो राइट टू वोट कर सकते थे। देन 1985 में राइट टू मैरी भी दे दिया गया था, ठीक है, राइट टू मैरी एंड सेक्स विद वाइट्स। एंड इन 1986 पास लॉज वर अबॉलिश्ड, यानी कि 1985 में वाइट और ब्लैक के बीच में जो मैरिज था वो लीगल हो गया था। और 1986 में जो पास लॉज थे, ठीक है ना, पास लॉज जिनके वजह से सब कुछ स्टार्ट हुआ था, वो भी एबॉलिश कर दिए गए, ठीक है। यानी कि अब ब्लैक्स का मूवमेंट हो सकता था, यानी अब वो रिजर्व्ड एरिया में ही नहीं रहेंगे, वो वाइट्स के भी एरिया में जाके सेटल हो सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें दे दी गई उनको। देन 1989 में नए प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। अब PW बोथा के बाद एक और रेवोल्यूशन होता है 1989 में, जब प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के FWD क्लर्क, और ये ग्रांट कर देते हैं फुल पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि अब पूरे तरीके से ब्लैक्स के पास पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि फ्रेंचाइज, सफरेज, राइट टू वोट रहेगा। एंड कैरी ऑन नेगोशिएशन विथ ANC, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब 1919 में नेल्सन मंडेला को भी जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। इनको अभी मैं बताता हूँ कौन है। नेल्सन मंडेला को भी 1990 में जेल से बाहर निकाल दिया जाता है, और यहाँ पे 1991 में उनके साथ नेगोशिएशन शुरू होती हैं फॉर द ब्लैक मेजॉरिटी रूल। अब इसके बाद FWD क्लर्क जो है वो फाइनली इन सारी चीज़ों में सक्सेसफुल होते हैं 1993 में। और 1994 में इलेक्शंस होते हैं, और जिसमें ANC जो है वो जीत जाती है। नेल्सन मंडेला यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं, और डेमोक्रेसी को रीस्टोर कर दिया जाता है साउथ अफ्रीका में, और साथ ही साथ यहाँ पे FWD क्लर्क वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसके अलावा एक बात इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि इन जनरल इलेक्शन में ना पूरे तरीके से मेजॉरिटी में नहीं जीती थी ANC, फिर भी कोलिशन सरकार फॉर्म हुआ था। इस वजह से ये जो क्लर्क थे वो डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे, और नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कहे जाते हैं, ठीक है। अब इनका क्या रोल है बेसिकली नेल्सन मंडेला का, तो मैंने आपको बताया था कि ये ANC के लीडर होते हैं, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, और थोड़े से रेडिकल मेथड्स वाले होते हैं। ये ल्यूथली या ये मार्टिन लूथर की तरह पीसफुल नहीं होता है, ठीक है। सो ही वॉज अ मेंबर ऑफ वायलेंट ग्रुप विद इन दी ANC, यानी कि ये थोड़े से रेडिकल इन नेचर थे। नेल्सन मंडेला इंडल्ज थे इन द बॉम्बिंग एक्टिविटीज, सो ही वॉज अरेस्टेड इन 1962 एंड गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सोचो ये व्यक्ति 1962 से 1991 तक जेल में रहा था, इतने सालों तक। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। इतने सालों तक ये जेल में रहे थे। देन ही गेन्ड वर्ल्ड अटेंशन, इसी के चलते वर्ल्ड अटेंशन इनको मिला, एंड ड्यू टू हिज सेक्रीफाइस गॉट नोबेल पीस प्राइज इन 1993। इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1993 में। अब आप लोग बोलोगे ये पीस वाले तो थे नहीं, लेकिन फिर भी इनका सेक्रीफाइस की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया था। इसके बाद डिटेल में इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस में लेके आया हूँ, बिकॉज एग्जाम्स में पूछ सकता है, तो आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट आंसर्स में अपने लिखना होता है। So contributions of Nelson Mandela in the anti-apartheid movement of South Africa. First, he joined ANC in 1944 and became its leader. आप लोग भी नोट डाउन कर सकते हो अपने कॉपीज में, ठीक है। मैं इतना यहाँ पे लिखना नहीं चाहता था। 1944 में ANC को नेल्सन मंडेला ज्वाइन करते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, और उसके लीडर बन जाते हैं।
ही फाउंडेड यंग लीग ऑफ ANC फॉर प्रोवाइडिंग रेडिकल मीन्स टू कैंपेन। मैंने बताया ना, ये यंग लीग फाउंड करते हैं जो कि रेडिकल एलिमेंट्स वाला होता है विद इन दी ANC। Then he was given life imprisonment in the Rivonia trial। ठीक है, रिवोनिया ट्रायल उस पर्टिकुलर केस का नाम दिया जाता है 1962 में। रिवोनिया ट्रायल में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है और इनको सिंपैथी मिलती है वर्ल्ड से इसी वजह से। देन ही लिव्ड इन अ आइसोलेटेड आइसलैंड 27 ईयर्स के लिए, सोचो 27 ईयर्स के लिए, इन 1991 फ्रॉम द जेल बाय FWD क्लर्क। After discussions for black majority rule, became the president of South Africa in 1994 through general elections when ANC gained majority. Also, he was awarded Nobel Prize for Peace in 1993। ये सारे जो है वो contributions हैं नेल्सन मंडेला के। फादर ऑफ द नेशंस भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ द नेशन जैसे हमारे यहाँ गांधी जी हैं। नाउ लेट्स डू द क्विक रिविजन जो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है शॉर्ट में। देखो, एंटी अपार्टheid मूवमेंट साउथ अफ्रीका का था। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सरकार कर रही थी ब्लैक्स के अगेंस्ट। सबसे पहले यहाँ पे डच थे, डच के बाद यहाँ पे बोर वॉर्स के थ्रू जो ब्रिटिशर्स हैं वो केप ऑफ गुड होप का फुल कंट्रोल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे PM मलान, ठीक है, PM मलान जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपार्टheid। अपार्टheid का मतलब है सेग्रीगेशन, अपार्टनेस, ठीक है, अपार्टनेस। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बेसिकली पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि कह सकते हो 1945 के बाद ही ये जो चीज़ थी वो लाई गई थी साउथ अफ्रीका के अंडर। देन पास लॉज, यहाँ पे पास लॉज आते हैं अपार्टheid के थ्रू। पास लॉज के थ्रू यहाँ पे मूवमेंट्स को स्टॉप कर दिया जाता है ब्लैक्स का, और वो वाइट्स के एरिया में नहीं जा सकते थे, उनको अपने रिजर्व्ड बैरक्स में रहना होता था। उसके बाद यहाँ पे इसी के चलते प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1952 में अंडर एल्बर्ट ल्यूथिली। और यहाँ पे 1960 में इसी के बाद सर्वपल्ली मास्करे होता है, जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म होता है आउटसाइड वर्ल्ड का, बेसिकली UNO और OAU का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी। एंड फिर यहाँ पे PW बोथा प्राइम मिनिस्टर आते हैं जो कि रिफॉर्म्स लाते हैं, और इसी के बाद FWD क्लर्क प्रेसिडेंट आते हैं और 1991 में स्टार्ट कर देते हैं नेगोशिएशन विद नेल्सन मंडेला फॉर द ब्लैक मेजॉरिटी रूल। एंड 1994 के इलेक्शंस के बाद यहाँ पे ANC जीतती है और नेल्सन मंडेला हमारे पहले प्रेसिडेंट बन जाते हैं साउथ अफ्रीका के। दिस वॉज द होल टॉपिक नंबर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक नंबर 3, दैट इज द फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑफ USA। हमें इसमें भी सेकेंड वेव के बारे में ही सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। सो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में। जो भी यहाँ पे मूवमेंट्स होते हैं वुमेन्स के द्वारा फॉर देयर इक्वालिटी विद द मेन इन द सोसाइटी, या फिर अपने राइट्स के लिए उनका जो एक प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, उसी को यहाँ पे फेमिनिज्म कहा जाता है। अब यहाँ पे वुमेन्स लिबरेशन रेफर्स टू द सीरीज ऑफ कैंपेन्स फॉर द रिफॉर्म्स और अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस, for maternity leave, equal pay, against sexual violence and harassment, and for the suffrage in the USA। ठीक है, अब ये 3 वेव्स में हुआ था पूरे वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन हम लोग जनरली USA के बारे में सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं, उसमें भी सेकेंड वेव। अब यहाँ पे फेमिनिस्ट मूवमेंट का जो फर्स्ट वेव था वो डील कर रहा था विद द सफरेज, यानी कि वुमेन्स ने डिमांड किया था राइट टू वोट, उनको बाद में मिल गया था। देन सेकेंड वाज विद द सोशो कल्चरल इक्वालिटी, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, सोशो कल्चरल इक्वालिटी। एंड थर्ड वाज फॉर द वुमेन्स इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिक्स, यानी कि वुमेन्स भी जो है वो पॉलिटिक्स में अब इंटरफेयर करें। लेकिन आज तक आप लोग को देखने को मिला होगा कि USA का कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बना है ना। जैसे हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बनी है, लेकिन वहाँ पे कोई वुमेन था नहीं है सच। तो इस वजह से ये तीसरा वाला फेज हम लोग कह सकते हैं आज तक चलते आ रहा है। चलो, so the second wave began in the 1960s and lasted till 1980s, where Betty Friedan's, ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, Betty Friedan's book Feminine Masculinity sparked of the second wave of feminism for the socio-cultural equality। बिकॉज फेमिनाइन मास्टर की जो बुक थी उसमें बेटी फ्रीडान ने सब कुछ लिख रखा था कि कैसे जो मेन हैं वो डोमिनेट करते हैं वुमेन को। USA में जो सरकार है वो वुमेन्स के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रही है। आप लोगों को याद है इंडिया का वुमेन वाला चैप्टर, ठीक है, उसमें भी मैंने टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट पढ़ाया था कि कैसे वो एक कमेटी का रिपोर्ट था, उसमें भी तो वही सारी चीज़ें लिखी गई थी जिसकी वजह से फेमिनिस्ट मूवमेंट आया था इंडिया में। बस वही चीज़ यहाँ पे भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही जो फर्स्ट वेव था
फेमिनिज्म का, उसको यूएसए में किसने स्पार्क ऑफ किया था, यानी कि कैसे आग लगी थी और अचानक से एक जो क्राइसिस था शुरू हो गया था कंट्री में, वर्जीनिया वुल्फ के अ रूम ऑफ वंस ओन बुक के वजह से, अ रूम ऑफ वंस ओन बुक के वजह से बाय द वर्जीनिया वुल्फ। चलो तो अब डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग अपने फेमिनिस्ट मूवमेंट इन यूएसए की बात करें तो अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया कि यूएसए में 3 वेव्स हुए थे वुमेन्स फेमिनिज्म के, जिसमें कि पहला वाला फॉर दी सफरेज था, यानी कि राइट टू वोट, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि 18-19 सेंचुरी के दौरान चला था, और बाद में चल के यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था 1920 में, ठीक है। इसको 19th अमेंडमेंट कहा जाता है, 19th अमेंडमेंट हुआ था, और जिसके थ्रू वुमेन्स को भी राइट टू वोट दे दिया गया था। आज तक वैसे ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से आप लोग देख लो कि जो 19वां था, उसी के थ्रू यहाँ पे राइट टू वोट 1920 में वुमेन्स को दे दिया गया था। उसके बाद जो सेकंड वेव स्टार्ट हुआ, मैंने बताया आपको कि 1960 से शुरू होता है और 80s तक चलता है। बेसिकली यू कैन से 20th सेंचुरी का ये था, जिसमें कि बेटी फ्रीडान ने स्पार्क ऑफ किया था थ्रू हर बुक द फेमिनाइन मास्टरपीस, ठीक है। और 1966 में फ्रीडान ने ही यहाँ पे फाउंड किया था नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, नाउ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, यानी कि NOW, और उसकी पहली इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी यही बनी थी, ठीक है। तो इनके कंट्रीब्यूशन भी साइड बाय साइड आप लोग लिख सकते हो। फिर उसके बाद फ्रीडान ने 1970 में अगस्त के महीने में ऑर्गेनाइज किया था नेशन वाइड वुमेन्स स्ट्राइक फॉर इक्वालिटी इन द न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में यहाँ फ्रीडान ने नेशन वाइड वुमेन्स स्ट्राइक इक्वालिटी के लिए ऑर्गेनाइज किया था अगस्त 1970 में, ठीक है। और वो क्या चाहती थी कि जो वुमेन है वो मेन स्ट्रीम ऑफ अमेरिकन सोसाइटी के साथ मिल जाएं और फुली यहाँ पे इक्वल पार्टनरशिप विथ मेन के साथ चलें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस स्ट्राइक में 50,000 से भी ज़्यादा वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। और 1971 में फिर फ्रीडान ने दूसरे फेमिनिस्ट्स को भी अपने इस मूवमेंट में ज्वाइन कर लिया था। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी ऑफ द इक्वल राइट्स अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वल राइट अमेंडमेंट का क्या मतलब है कि एक ऐसा अमेंडमेंट लाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूएसए के कि पूरे तरीके से इक्वालिटी आ जाए, ठीक है, कंट्री में हर एक फील्ड में, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, या कोई भी ऐसा फील्ड हो, उन सब में यहाँ पे इक्वालिटी आ जाए बस वुमेन्स का। ऑफ कोर्स इसको सदर्न स्टेट सपोर्ट नहीं करते हैं यूएसए के, सेम सिविल राइट्स की तरह। फिर उसके बाद वुमेन्स हेल्थ मूवमेंट भी इमर्ज होता है इन दी 1960s एंड 70s, in which multiple group of feminists were involved. The movement exposed how the United States healthcare system was failing women. क्यों? Because यहाँ पे जनरली वुमेन्स को ना एम्प्लॉय नहीं किया जा रहा था, किन चीज़ों में, मेडिकल फील्ड्स में। तो इसी वजह से बाद में चल के फिर 1972 में EEA आता है, यानी कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्ट, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्ट। देन नाउ व्हाट वर द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इसके चलते, मूवमेंट के चलते क्या क्या मेजर्स लिए सरकार ने। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स टुक जॉब्स इन डिफरेंट फैक्ट्रीज, बट एम्प्लॉयर्स, ठीक है, यानी कि ओनर्स paid them low salaries than the male workers. Various feminist groups protested against this gender discrimination. Finally, the American president JF Kennedy, ठीक है, decided to abolish this gender discrimination. In 1963, US Congress passed the Equal Pay Act to prohibit discrimination on the account of sex in the payment of wages by the employers. The Congress passed Equal Pay Act of 1963 out of concern of the weaker bargaining position of women. To provide a remedy to discriminatory wage structure, the EPA provides that the employer may not pay lower wages to employees of one gender that it pays to the employees of other gender employees within the same establishment with the equal skill, responsibility and similar working condition. यानी कि यहाँ इक्वल पे एक्ट 1963 में लाया गया। क्यों? बिकॉज जो वुमेन्स यहाँ फैक्ट्रीज में काम करती थी वर्ल्ड वॉर के दौरान, उनको यहाँ पे इक्वल पेमेंट नहीं दी जा रही थी। तो इसी वजह से सरकार ने बोला कि अगर दोनों जेंडर एक तरीके का काम कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके का स्किल्स है उनके अंदर, तो आप
पैसे के मामले में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये चीज ओनर्स को बोली गई थी। नाउ नेक्स्ट वाज द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। सिविल राइट एक्ट जो था वो हमने यहाँ भी डिस्कस किया था और अब यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये ब्लैक्स के लिए भी था और वुमेन्स के लिए भी था। तो सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 जो था वो कांग्रेस ने पास किया था, जिसको प्रेसिडेंट लाइडन बी जॉनसन ने पास किया था 1964 में, जुलाई के महीने में। अब ये एक लैंडमार्क था लेजिस्लेशन का। क्यों? बिकॉज इट आउटलॉज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स और नेशनल ओरिजिन। यहाँ पे 5 कैटेगरीज की बात हो रही है। इन 5 कैटेगरीज पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। पहला रेस, यानी कि आप लोग कह सकते हो ब्लैक व्हाइट, देन कलर वही है उससे रिलेटेड, देन रिलीजन, देन सेक्स यानी कि जेंडर, एंड नेशनल ओरिजिन, ठीक है, यानी कि नेशनलिटी। It ended unequal application of voter registration requirement and racial segregation in school, at workplaces and facilities that serve the general public. तो ये बहुत important था। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे movement by the National Organization for Women under Betty Friedan for the Equal Right Amendment, जिसके बारे में अभी मैंने बताया आप लोगों को। तो फिर यहाँ पे होता क्या है, The President's Commission on the Status of Women was established in 1961 by President Kennedy in the hope of providing a solution to the female discrimination in education, workforce, and social security. The main demand of the organization was to take action to bring women force and social security. The main demand of the organization was to take action to bring women into full participation in the mainstream of American society. Other demands for violence against women, constitutional equality, end of racism, equal economic justice, and others. A number of southern states refused to rectify the Civil Rights Act of 1964. ठीक है, तो ये southern states तो ऑर्थोडॉक्स हैं, तो ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो फिर इसी के चलते जो नाव था उसने इनकरेज किया मेंबर्स को टू पार्टिसिपेट इन मार्चेस एंड इकोनॉमिक बॉयकॉट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द एक्ट बाय द सदर्न स्टेट्स, यानी कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन ने 1970 में पिकेटिंग स्टार्ट की इन सदर्न स्टेट्स की, ठीक है, यानी इनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेट ने फिर यहाँ पे एक हियरिंग रखी थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेके, इक्वल राइट अमेंडमेंट के ऊपर। ऑफ कोर्स इसको कांग्रेस तो पास कर देती है, लेकिन फिर उसके बाद स्टेट्स को भी रेक्टिफाई करना होता है, जो कि यहाँ पे नहीं कंप्लीट हो पाता है। 1982 तक का टाइम पीरियड दिया गया था, 1972 से 10 साल का, लेकिन ऑफ कोर्स रेक्टिफिकेशन ना होने की वजह से ये ERA तो यूएसए में नहीं आ पाता है। लेकिन फिर भी हम लोग अगर बात करें तो फेमिनिस्ट मूवमेंट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव कह सकते हैं इम्पैक्ट रहता है सोसाइटी के ऊपर। क्यों? बिकॉज हमने देखा था कि इसी के चलते जो अब वुमेन्स थी वो इंडिपेंडेंट हो गई थी, वो घरों के बाहर निकल के अब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती थी इन दी वर्किंग्स, ठीक है, यानी कि जॉब्स, करियर्स अपना बिल्ड कर सकती थी। यहाँ तक क्लियर है ना? अब इक्वल पे एक्ट का ना थोड़ा सा यहाँ पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले implications of Equal Pay Act of 1963 on American women. We can say that the salaries of American women increased as compared to the wages of men. The gap or inequality between American men and women was thereby reduced. Thus, EPA demanded that a male and a female possessing equal amount of skill and doing equal or similar work should be paid equal amount of wages, irrespective of their biological sex. Then limitation क्या था इसका? That EPA initially did not include administrators, salespeople, professionals, and executives. This was rectified later in the educational amendments of 1972, which was also prohibited gender discrimination in educational institution which received federal aid from the center. ठीक है, यानी कि 1972 में जो एजुकेशनल से रिलेटेड अमेंडमेंट आए थे उसने एजुकेशन में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया था। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के भी एक बार रिवीजन देखें तो सबसे पहले फेमिनिस्ट मूवमेंट में हमने क्या बात की कि जो सेकेंड वेव है यूएसए में वो स्टार्ट होता है 20th सेंचुरी में ड्यू टू दी बेटी फ्रीडांस बुक द फेमिनाइन मास्टर की। यहाँ पे हम क्या देखते हैं दैट 1966 में ये फाउंड करती हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन को और उसकी पहली प्रेसिडेंट भी बन जाती हैं। फिर उसके बाद 1970 में यहाँ पे वो ऑर्गेनाइज करती हैं नेशन वाइड वुमेन स्ट्राइक फॉर इक्वालिटी इन द न्यूयॉर्क, और 71 में वो इक्वल राइट्स अमेंडमेंट के लिए भी यहाँ
पे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है, बाय द वुमेन्स। फिर ऑफ कोर्स एक और बात आप याद रखना कि ये लेस्बियन मूवमेंट को भी सपोर्ट कर रही थी, यानी LGBTQ कम्युनिटी को भी यहाँ पे फेमिनिज्म का सपोर्ट मिला था, ठीक है। आप लोग को पता ही होगा ना लेस्बियन मतलब क्या होता है और ये सब चीज़ें, तो वही चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वल पे एक्ट आया था 1963 में, ठीक है। इक्वल पे एक्ट आया था 1963 में, जिसके थ्रू यहाँ पे जो वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था जॉब के मामलों में वो खत्म हो जाता है। देन सिविल राइट एक्ट आया 1964 में, जिसने कि ना ही सिर्फ ब्लैक्स के प्रॉब्लम को जबकि वुमेन्स के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन था लॉज में रेस, जेंडर, नेशनल ओरिजिन, इन सब मामलों में खत्म कर दिया गया। देन इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्ट 1972 का, जिसके थ्रू यहाँ पे एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में वुमेन्स को इक्वालिटी प्रोवाइड की गई थी। देन 1970s का मूवमेंट मैंने बताया आपको नाउ का किस लिए होता है, इक्वल राइट अमेंडमेंट के लिए, लेकिन इसको सदर्न स्टेट्स रेक्टिफाई नहीं करते हैं, इस वजह से ये नहीं आ पाता है। लेकिन ऑफ कोर्स फेमिनिस्ट मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है यूएसए के सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि सदर्न स्टेट्स के पास कैसे पावर आ गई जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है इस ERA को। तो आप लोगों को मैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाऊंगा अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ USA अमेरिका, कैसे वहाँ पे ना एकदम कट्टर वाला फेडरलिज्म है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है कि थोड़ा सा सेंट्रल फीचर आ जाता है, इस वजह से अकेले जो हमारी पार्लियामेंट है वो बिना स्टेट से पूछे बहुत सारे अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी वजह से तो मैंने कहा कि सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं। वहाँ पे ऐसा सिस्टम है ना कि पहले यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लोअर हाउस में, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, वहाँ से पास होगा, फिर जाएगा अपर हाउस, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, वहाँ का सेनेट कहा जाता है। सेनेट से जब पास होगा तब यहाँ पे वो जाएगा स्टेट्स के पास। स्टेट्स के पास जाएगा तो यहाँ पे कितना रेक्टिफिकेशन चाहिए होता है, 3/4 का मतलब 50 में से, ठीक है ना। यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, 38 को रेक्टिफाई करना है, ठीक है। 38 को रेक्टिफाई करना है उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को, तभी वो हो पाएगा कंट्री के अंदर, वरना वो फेल कर जाएगा। और कांग्रेस डिसाइड करता है एक टाइम पीरियड कि हाँ इतने टाइम पीरियड में स्टेट्स जो हैं वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो 1972 में ये चीज़ लाई गई, इक्वल राइट अमेंडमेंट। और टाइमलाइन कितना दिया गया, टाइमलाइन दिया गया 1982 तक, यानी 10 साल का, कि स्टेट्स को इतना टाइम मिल रहा है 1972 से 82 तक का कि इक्वल राइट अमेंडमेंट को रेक्टिफाई करें। लेकिन ऑफ कोर्स 38 में से सिर्फ 5 ने रेक्टिफाई नहीं किया, उनमें से ये सदन ही थे जो कि ऑर्थोडॉक्स नेचर के थे, और उसके वजह से ही ये इतना अच्छा जो एक टाइप से लॉ था कंट्री में नहीं आ पाया था। क्लियर है। तो दिस वाज द एंड ऑफ दिस टॉपिक ऑल्सो, एंड इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था प्रोटेस्ट मूवमेंट वो ख़त्म होता है। हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बस एंड पे ही आ चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं यहाँ पे कंटेंट अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। फिर उसके बाद आप लोग कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि कोई डाउट तो नहीं है ना इस या दूसरे किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।